यर्गन क्लॉप को पूछा गया कि क्या हो रहा है लिवरपूल का, हर एक मैच में यू आर गोइंग बिहाइंड और प्लेयर्स शुरू नहीं कर रहे उस मेंटालिटी से जो प्रोबेबली रिक्वायर्ड लिवरपूल के लिए। क्या ये सच है और क्या प्रॉब्लम है? और यर्गन क्लॉप इज लाइक, नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मीनवाइल ऑपोजिशन फैंस तो और लिवरपूल फैंस प्रीटी श्योर रॉय हॉजसन लिवरपूल के मैनेजर भी थे। बट एनीवे, दिस इज जस्ट फॉर बैंटर थिंग्स। लेकिन वही नहीं, इवन आर्सेनल, यस आर्सेनल भाई, वो लोग हार गए हैं फॉर द ओनली सेकंड टाइम इन द प्रीमियर लीग सीजन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर भी मैं बोलता हूँ आर्सेनल फैंस, आपने घबराना नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द हैंड, कैन दे विन द प्रीमियर लीग? वाओ, आउटसाइड शॉट, आई डोंट नो, आप लोग बोलिएगा। फिर भी कैसेमीरो भाई अपने टीममेट को बचाने के लिए भाई खुद पर क्या कर दिया, देखिए आप। Anyway, let's get into it. A lot to talk about. Yes, Super Saturday Premiership at its level best, and not just that. बाकी लीग्स को भी हम quickly recap करेंगे. A very special moment happened somewhere, और आप लोग सब रिलेट करोगे. Some coincidence, but there is something to be scared of for Chelsea fans as well. तो भाई बनेगा लास्ट तक because there's a lot to be speaking about. By the way, we are live even today for the Milan derby and to discuss a lot more things. So do not forget that. We'll do a preview show शाम को. But come on, getting into it. सबसे पहले भाई प्रीमियर लीग में दिखा दो क्या हो रहा है. We have to suffer. We all say that. इतना दिन हो गया मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लिवरपूल फैंस इवन मोर, आर्सेनल फैंस फॉर अ चेंज अभी के लिए अभी भी 5 पॉइंट्स ऑन टॉप है. यस, आर्सेनल फैंस देख लीजिए जब तक है वो, pretty sure it might be there as well come the end of the season. लेकिन who knows? Manchester City, Manchester United, आप देखो, the way I see it, Manchester United are technically 6 points behind Man City and 9 points behind Arsenal. क्यों? क्योंकि Man City और Arsenal का दोनों एक गेम in hand है, but they are to play each other. Remember that. तो अगर वो draw हो जाता है, which is best case scenario for Manchester United, तो I think Manchester United are actually in a decent position. Meanwhile, Newcastle भी draw कर रही है, उस पर भी बात करेंगे. Coming to the game, और let's first analyze quickly this game. हम हर एक गेम देखेंगे quickly, of course other leagues भी, but पहला गेम यार Wolves versus Liverpool. Yes, Liverpool lost 3-0 by chance, आप लोगों को पता नहीं अभी तक, इसीलिए वो बैंटर just for banter हो रहा था. But anyway, मजाक jokes aside, this is what the lineup was. अब yes, काफी सारे पंडित्स बोल रहे हैं that Jurgen Klopp's time is up. What else can he try? भाई maybe Jurgen Klopp finally give up कर दे, और वो खुद तो लग नहीं रहे अभी give up करने के लिए, and probably that's the man he is, and that is why he's respected as well over the years. But 4-3-3 वापस से, yes I know that आप देखोगे कि यार सेकंड हाफ पे they came back well, they tried their best, और थर्ड गोल हुआ काउंटर में thanks to Adama Traore of course, and of course नेवेस जो अभी तक है वुल्स में for whatever reason. But with all due respect to Wolves, I must say जो set pieces लिए उन्होंने first half में, that was the difference maker. और on the other hand, भाई Matip had a poor game. Let me be very honest, he had a poor game. आप देख ही रहो रेटिंग्स जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, it is quite clear for me. Matip had a poor game, so did Gomez, और I think अभी they are missing Virgil van Dijk और Konate like anything, मैं तो बोलता हूँ. But again, like I said, why don't you change the system? Do something else ताकि आप defensively solid रहो. You don't lose goals on the counter at least. Or generally speaking, even by Darwin Núñez, he gets into places. अच्छा attempt था एक दो, लेकिन यार he doesn't finish. The same old. Very similar to Chelsea, you can say that. But क्या आपको पता है, और मैं एक crazy stat throw करने वाला हूँ यहाँ, crazy, absolutely crazy. लिवरपूल इस साल के प्रीमियर लीग टेबल में, इस साल के, इस कैलेंडर ईयर के प्रीमियर लीग टेबल में, they are right at the very bottom. If you consider only 2023, and we are already in February, so it is not good at all. तो भाई आप लोग बोलिए, considering that Liverpool are now in 10th position, or yes 1 point behind Chelsea with a game in hand, लेकिन do you think कि Liverpool, with all due respect to Jurgen Klopp, should be given time? और आप बोलोगे again injuries and what not, या Jurgen Klopp, it's high time that he try something new totally. मतलब अभी तो ट्रांसफर विंडो भी चला गया, I know what's happening with the ownership, but there are huge issues. Again हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में शाम को hopefully. But again credit to Wolves, कहीं ना कहीं सराबिया का भी गेन helps, and I must say again मतलब Matthias Cunha, but at the end of the day I think Ruben Neves, Matthias Nunes, भाई दो क्वालिटी मिडफील्डर्स उनके पास, क्वालिटी मिडफील्डर्स. आई नो Matthias Nunes might move to Liverpool ironically, लेकिन यार मे बी वही बदला लिया था. याद रखिए
इस मैच में तो भाई द कैमरा एंगल वाज राइट, करेक्ट। लिवरपूल फैंस बहुत गुस्सा हो रहा है ये वीडियो देखकर, पर नहीं बैंटर यार, जस्ट फॉर बैंटर तो बनता है मौका यार, कम ऑन। प्रीटी श्योर यहाँ पर चेल्सी फैंस का भी सेम हो रहा है, तो वी काइंड ऑफ रिलेट टू यू, सो डोंट वरी अबाउट इट भाई। एक साथ हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम, और यस डू कमेंट बिलो अबाउट लिवरपूल, एंड नेक्स्ट गेम इज मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रिस्टल पैलेस। तो हम आ सकते हैं, लेकिन एवर्टन आर्सेनल पर आते हैं, बिकॉज इट इज आर्सेनल गॉट डाइश्ड, सिंपली पुट। इजी नहीं है आर्सेनल इस सीजन टू काइंड ऑफ फेस आर्सेनल, दे आर अ वेरी फ्लूइड टीम, और लग रहा था एवर्टन वाज ट्राइंग समथिंग न्यू एंड दैट वाज क्लियर टू सी। मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को फॉर्मेशन, दे प्रॉब्ली हैड सो मेनी मिडफील्डर्स इन, और कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज वेयर द हाइट एंड द फिजिकलिटी ऑफ एवर्टन रियली हेल्प्ड। प्लस जनरली भी फुटबॉल में गुडिसन पार्क में दे मेक इट टफ, एंड दैट इज व्हाट वाज प्रूविंग टू बी। आई थिंक ओनाना इस फॉर्मेशन कम्स आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ओनाना भाई, वो उसको एक मिला था लेफ्ट चैनल में एक चांस जो बहुत ही वेल टेकन था, दैट वुड हैव बीन अ ब्रिलियंट गोल ऑन काउंटर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वो। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक उनकी डिलीवरी भी कॉर्नर्स में बहुत अच्छी थी, दैट इज वेयर मैकनील एंड वो भी हेल्प्स। और ऑफ कोर्स याद रखिए शॉन डाइश के प्लेयर्स है भाई, इन अ वे मैकनील हैज प्लेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शॉन डाइश एज वेल इन बर्नली, और टारकाउस्की तो हमें पता ही है। तो कहीं ना कहीं देयर इज सम कनेक्शन देयर, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ मोमेंट जहां इड्रिसा गाना गाय काइंड ऑफ हिट पोक्ड द आई ऑफ साका, बट बहुत ही फीबल था, मुझे लगा नहीं कुछ। यस सरप्राइज आर्सेनल फैंस, यस थॉमस पार्टे 100% फिट नहीं थे, मुझे ये भी सुनने में आया था, हम कवर किए थे वो आई थिंक when we did the Chelsea watch along, but Jorginho coming in, पता नहीं यार, Jorginho doing his job, still keeping the blue flag flying, I just saying, but agent Jorginho उसकी कोई गलती नहीं थी, I must say, in terms of set pieces, हाँ ये गलत किया था आर्टेटा ने। yes he is backing his players, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया बाद में वो quite obvious है, but surprising that he kept basically Odegaard और Saka to do the job in terms of man marking. Doesn't make sense to me. तो वहां थोड़ी गलती होगी, and again remember Everton only the second side to beat Arsenal in the league this season, तो credit to Sean Dyche। आप लोग बोलिए as things stand, और मैं यहाँ relegation भी दिखाने वाला हूँ, यहाँ टॉप हाफ ही नहीं, हम बॉटम हाफ का भी बात करेंगे एब्सोल्युटली थोड़ा बहुत, because that is something related to our club as well, whoever's watching, but anyway do let me know what do you think about Everton now what 18 points, they are technically what, हाँ equal on points to Leeds United, with Leeds United having 2 games in hand, but क्या बोलते हो आप लोग, शॉन डाइश आ गए, देयर इज अ हाई चांस। मुझे तो लग रहा है जैसे मैंने बोला था इन द रीसेंट स्ट्रीम्स कि आई कैन सी बोर्नमथ, साउथहैम्पटन एंड मे बी वेस्ट हैम, जस्ट आई एम सेइंग मे बी वेस्ट हैम, आई एम जस्ट सेइंग वेस्ट हैम हो सकते हैं कंसीडरिंग ये परफॉर्मेंस जो दिया वुल्व्स ने आज अगेंस्ट लिवरपूल, तो आई डोंट नो, लेट्स सी। आई नो वेस्ट हैम ने एक पॉइंट लिया अगेंस्ट न्यूकासल एंड वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल, लेकिन साउथहैम्पटन यार, मतलब साउथहैम्पटन का होप ही नहीं है, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। Just terrible. Yes, Southampton got beaten 3-0 Brentford के साथ में. I know it was an away game, but crazy यार. Again, मैं क्यों mention किया हूँ? Because Brentford आज के दिन में ये दिन आ गए. Brentford and Brighton got a narrow victory. Mitoma भाई all FPL गुरुज याद है, मैं जोर दिया था Mitoma पर, और Brentford में याद रखिए बेनमी पर जोर दिया था and he scored as well. तो भाई दोनों have got victories, that's Brighton and Brentford, and all of a sudden we want these kind of clubs also to drop points. I know, like I said, Newcastle ने drop किया, अच्छा किया, they drew against West Ham. For Chelsea or Liverpool or maybe say even to some extent Manchester United perspective, लेकिन what do you think about Brentford और Brighton? मतलब क्या लगता है आप लोग को, ये क्लब जाएगी टॉप 4 में या टॉप 6 में? चांस तो है यार, the fact is they are even above Fulham, जो बहुत अच्छा की थी चेल्सी के साथ दोनों ही मैचेस में सीजन, जस्ट एन एग्जांपल, बट डू लेट मी नो। एंड बाय द वे अगेन याद है मुझे चेल्सी से, भाई लिवरपूल साइड इतनी बुरी खेल रही है, लास्ट 3 अवे मैचेस, आई नो कमिंग बैक टू लिवरपूल, दे हैव लॉस्ट 3-1 3-0 3-0, उस टीम के साथ भी चेल्सी स्कोर नहीं कर पाई। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज आवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या बोलूं यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लिवरपूल, एंड ऑफ कोर्स वो दिखाता चेल्सी का फॉर्म एज बैड एज वेल, बट एनीवे डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रिस्टल पैलेस बोलना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स द टॉकिंग पॉइंट यहाँ पर रेड कार्ड, और बहुत काइंड ऑफ एज इन मूड में थे। आई नो एरिक टेन हाग ने बोला है दैट इज इनकंसिस्टेंट रेफरी, व्हाट डू यू ऑल थिंक, कमेंट बिलो, क्योंकि जब हुआ बवाल मचाना एंटनी पर एक चैलेंज था जेफरी श्लुप का, और वहां पर ऑब्वियसली बीइंग अ कंपैट्रियट ब्राजीलियन भाई कैसेमिरो आने लगे और प्रोटेक्ट करने लगे, और तभी भाई ह्यूग्स आए थे एंड ह्यूग्स का बेसिकली गला पकड़ लिया। साथ में इन द सेम ब्रॉयल क्या हुआ था, आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग, यहाँ पर आयू डिड दैट टू फ्रेड अनदर ब्राजीलियन, तो उनको तो छोड़ा गया बट कैसेमिरो को नहीं। आई नो कैसेमिरो इज प्रॉब्ली वर्स, टेन हाग टोल्ड द अदर वे अराउंड, लेकिन आई फील दैट कहीं ना कहीं कैसेमिरो बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर शुड नॉट हैव डन दैट। अभी दे हैव 2 मैचेस अगेंस्ट लीड्स एंड 1 अगेंस्ट लेस्टर जो मिस करेंगे, जहां तक मुझे मालूम है, इन द प्रीमियर लीग। नॉट टू टफ, लेकिन
you all know that it is Premier League. Anything can happen. आप लोग बोलेगा in those matches whom would you play? Is it McFred or would you say totally different? नहीं, it probably should be the debutant जो किए थे आज Sabitzer. By the way, Sabitzer को एक assist मिल सकता था. एक बहुत ही feeble foul दिया गया था उनके against जो Rashford, the man of the hour, एक और स्कोर करते हैं. बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, यस, राशफोर्ड स्कोर्ड अगेन. भाई, वाटर इज वेट. और क्या बोलोगे? इज ही द बेस्ट प्लेयर इन यूरोप? ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है. आई नो, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है. ऑन फॉर्म, इज ही द बेस्ट प्लेयर इन यूरोप? मार्कस राशफोर्ड, रियली, जो हम देख रहे थे पर्पल पैच एकदम अर्लिंग हालैंड का बिगिनिंग ऑफ सीजन एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप मेसी का इन द लास्ट 1 month, आई थिंक प्रोबेबली इन यूरोप 1.5 months में बोलता हूँ. राशफोर्ड, क्या बोलते हो आप लोग? आई डोंट नो, लेट मी नो. बट इंटरेस्टिंग, वेगहॉर्स्ट ने स्टार्ट किया. इंटरेस्टिंग दैट मे बी दे डिडंट हैव लाइक आई थिंक मार्शियल फिट नहीं थे. आई डोंट नो, डू लेट मी नो व्हाट अबाउट दैट. बट हाँ, इंपॉर्टेंट विन था. इनफैक्ट क्रिस्टल पैलेस का बदला लिया. द फैक्ट इज क्रिस्टल पैलेस ओलिसे ने किया था उस फ्री किक इन द फर्स्ट लेग एंड गॉट द इक्वलाइजर, रिमेंबर. तो कहीं ना कहीं आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवरऑल यू कैन से दे डिजर्व्ड इट एज वेल. यस, आफ्टर द रेड कार्ड उन्होंने गोल स्कोर किया क्रिस्टल पैलेस, बट टू लेट फॉर मी. आई थिंक वियरा हैज टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. एज मच एज प्लेयर्स है उनके पास में अच्छे, लेकिन I don't think they're doing the job for me. Manchester United, again, do let me know whether they will be right up there when it comes to the Premiership end. मतलब मुझे लगता है they'll challenge, but they might just miss out. Definitely depends on क्या होता है यूरोपा लीग में all that. बारसा का टाइम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक, लेकिन a lot to be discussed again. आप लोग बोलिए. और by the way, मैं आर्सेनल में पूछना भूल गया आप लोग से. The fact is, हर एक गेम में अभी भी he starting with the same 11. क्या आप देखना चाहोगे आर्सेनल फैंस से न्यूट्रल्स that maybe a Trossard और जॉर्जिनियो को स्टार्ट करो? Are you committing me? I know, jokes apart, but just saying on a serious note, is it time for that? Or maybe Gabriel Jesus अभी धीरे धीरे आ रहे इंजरी से, तो hopefully by end of the month he'll probably start. And I know एक ही लॉस है, but where do you see them going? क्योंकि अभी भी 2 मैचेस बाकी है मैनचेस्टर सिटी के साथ. So if they lose that both, I know बहुत ही बेस्ट केस सिनेरियो फॉर सिटी जो आज खेलने वाली टू स्पर्स अवे, but you never know. That is City for you, right? But again, as things stand, भाई इंटरेस्टिंग तो है प्रीमियर लीग, नो टू वेज अबाउट. द मैच ऑफ द डे आप लोग बोले प्रीमियर लीग में प्रोबेबली 2-4 एस्टन विला वर्सेस लेस्टर. और हाँ, हैप्पी एज अ चेल्सी फैन अगेन, क्योंकि एस्टन विला इज जस्ट बिलो चेल्सी. तो द फैक्ट इज दे ड्रॉप 3 पॉइंट्स. ऐसे दिन आ गए भाई, हम देख रहे हैं मैचेस ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड, एस्टन विला के, and Newcastle as well, definitely with all due respect to them. And by the way, Newcastle won, West Ham won, important 1 point for David Moyes. ये बोलना चाहूंगा, West Ham were probably better in the first 1 hour, लेकिन overall आप जानते हो Newcastle भाई, you believe it or not, this is actually a stat. Newcastle by August end say I think they are unbeaten in the league. Crazy with Newcastle United we are talking about. Absolutely brilliant stuff by the Eddie Howe. But anyway, देखते हैं. I still have my doubts about them finishing 4th, लेकिन they are still favorites मैं तो बोलता हूँ. बाकी में क्या हुआ भाई, बाकी लीग में क्या हुआ क्विकली मैं बोलना चाहूँ तो एटलेटिको मैड्रिड ड्रू विद गताफे. रोमा ने जीता 2-0 टू एम्पोली. बाय द वे, मोरिनियो बहुत बड़े स्टेटमेंट्स के साथ आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे. वी टॉक अबाउट मिलान डार्बी आज शाम को लाइव. एंड भाई मैं देख रहा हूँ PSG बीट टुलूस 2-1. दैट्स एन इंटरेस्टिंग वाला रिजल्ट, क्योंकि इन दैट गेम नेमार एंड एम्बापे बोथ वर इंजर्ड. मेसी ने स्कोर किया, लेकिन आई बिलीव हकीमी वाज मैन ऑफ द विद एन असिस्ट एंड अ गोल. तो दैट विल बी इट फॉर नाउ. और हाँ, बड़ा स्टोरी, सबसे बड़ा शाउट आउट है जाता है हैलर को, सेबास्टियन हैलर. उन्होंने स्कोर किया ऑन वर्ल्ड कैंसर डे. तो शाउट आउट टू सेबास्टियन हैलर. यस, डॉर्टमंड बीट फ्राइबर्ग 5-1, बिलीव इट और नॉट. और हाँ, चेल्सी खेल रही है डॉर्टमंड के साथ. वो चेल्सी के लिए भी इंपॉर्टेंट है इन द राउंड ऑफ 16 व्हिच इज गोइंग टू कम वैलेंटाइंस डे के आसपास. रिमेंबर दैट, मार्क योर डेट. बट हैविंग सेड दैट, definitely all respect to Sebastian Haller. I know Dortmund are looking good. Chelsea fans क्या बोलोगे यार? We need to buck up quickly, and of course Liverpool fans as well, and to some extent Arsenal you can say, but just a blip. Let's see. Interesting to have, bhai. Looking forward. Let's look forward to this evening's live stream and a lot more. Always a fan channel for all to see. Love you all.